Okay, so when we talk about the term 3x, 3 is known as the coefficient and x is known as the variable. And together, 3x is known as the term. So a variable is basically a symbol or letter that is used to represent some unknown quantity. So x is an unknown quantity over here. We are going to call this a variable because it is used to represent something unknown. 3 is the coefficient that is attached in front of a variable, or let's say a group of variables to form a term. Similarly, 4x squared y. So in 4x squared, this x squared y is your variable, and 4 is the coefficient, and together 4x squared y is known as the term. So there can be one or more terms in an algebraic expression. So if I add these two terms, then this is known as the algebraic expression. The first thing that we are going to discuss is the substitution of the unknown quantities in the algebraic expression. So for example, if I give you, if it is given that P is minus 2, Q is 3, R is negative 1, and let's say I ask you to find the values of the following expression. Number 1, P square Q plus 2PQR over QQ. So all you just need to do is plug in these values and get me the answers, okay? So I'm writing down these terms over here. Okay, I have already written it. So you can just plug in the values of P, Q, and R and solve it without the calculator. Okay, so I'm waiting for you to Okay. give me the answers to the first part. Okay. So I'm getting 8 over 9. What about you? I'm getting the same answer. Let's try the second part.
Sir, how did you solve the second part? Okay, in the second part, you are going to plug in the values of the unknown. R is -1. The value of P itself was -2. So negative times -2 is going to be +2. And it was being divided by R, which is -1. So positive 2 divided by -1 is -2. And then 6 upon 3, which is also 2. So square root of -2 plus 2 is 0. So square root of 0 is 0. -2, that's why -2 is the answer. Okay. Okay, carry on with the third part and the fourth part. -61. Yeah, that's correct. -61. Sir, the answer for part 4 is 64. Yes, that's correct. The answer is 64. Okay. Now, you must also know how to write down the formula. So the question number 1, 2, and 3 are very similar to what we have done right now. So all you need to do is plug in each of the values and you are going to you're going to evaluate the final answer. So find the value of a plus 5b cube when a is this, b is this. So it's very easy for you now. Okay, now given to us the
word problem and we have to come up with a formula. So you need to write down a formula for the mean height m centimeter of a group of n people whose height total is centimeter. So what do you think the formula linking m, n and h would be? We want to write down the formula for the mean height m centimeter of a group of n people whose height total is centimeter. So there are n number of people and the total of their height is what? 8 centimeter. So how would you take out the mean? By So adding it. so the total height of all the n people is 8 centimeter. If you divide it by the number of people n, that is going to give you the mean height m. So that's the formula that you wanted. Okay. In this exercise, we are Okay. just going to write down the formula. Now, in question number 6, the cost of hiring a car is a fixed charge F dollar plus the number of days N multiplied by the daily rate D dollar. What is the formula for C? So if you want to hire a car that is going to cost you C dollars at the end, that comprises of two charges. One is the fixed charge that you want to give, you will have to give, and that fixed charge is F dollars plus the number of days you have taken a car on a rent. So if the daily rate is $5 and you have taken a car for 2 days, you are going to pay $10, 5 times 2. So similarly, if the daily rate is D dollars and you have taken it for N days, what is the charge that you are going to pay? $D. $D into n number of days के लिए. ठीक है. So that is your variable cost, meaning variable cost is a cost that changes with time. If you're going to change the value of n, let's say आपने 3 दिन के लिए कार रेंट पे ली होती, ठीक है, और हर दिन आप $10 पे कर रही होती, तो 3 दिन के लिए लिए $10 के हिसाब से $10 हर एक दिन का है. So you're going to multiply the rate by the number of days. So that's one of the cost that you need to pay. Plus F dollar is the fixed cost. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार आप रेंट पे ले रही हो और उसका पर डे किराया है ₹5,000, ठीक है, आपके घर पे इवेंट है और आपको एक है ना रेंट अ कार चाहिए. सो ₹5,000 पर डे, ठीक है, और प्लस इसके साथ फिक्स चार्ज होंगे, फिक्स हो गए ₹2,000. तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने 10 डेज के लिए कार लेनी है, तो आपकी क्या कॉस्ट होगी एट द एंड ऑफ द डे? तो 10 डेज के लिए जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो होगी फिक्स कॉस्ट $2,000 प्लस 5,000 के हिसाब से आपने 10 डेज के लिए लेनी है. सो 5,000 टाइम्स 10 इज 50,000. 50,000 प्लस 2,000 ₹52,000. ठीक है, तो ये 10 डेज की कॉस्ट आ गई. इसी तरीके से यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, फिक्स अमाउंट प्लस डी इंटू एन. डी इज द डेली रेट, एन इज द नंबर ऑफ डेज. तो आपने जब टोटल किया तो आपको टोटल कॉस्ट मिल गई. समझ में आई बात? जी सर, यस. समझ आ गया. ओके. So you can try this one. The length of a rectangle is a centimeter. The width is 15 centimeters shorter. The length is 3 times the width. Write down an equation in A and solve it to find the length and the width of the rectangle. So they are talking about a rectangle जिसमें the length is A. So what is the width? 15 What is the centimeter width in total. terms of 15? So what is going to be the expression of the width? It is 15 15 centimeters minus shorter. 15.
So that is going to be a minus 15 centimeter. That's correct. ये आपके पास width हो जाएगी. अब how are the length and the width linked together? The length is three times the width. You have been given this information in the question. So the length is a and the width is a minus 15. Here you go. You have the equation in front of you and you are just going to solve it to get the value of a. So a comes out to be 45 over 2, which is 22.5 centimeter. So you were asked to find the length and the width. So if the length is 22.5, okay, that's your length. So width is going to be 22.5 minus 15, right? So width is going to be 22.5 minus 15, that is 7.5 centimeter. Sir, can you explain this question again? Yeah. You were given a rectangle in which the length of the rectangle is a centimeter and the width was 15 centimeter shorter. The question says that the length is three times the width. If you want to form an equation, you need something to relate to form an equation. So we are given that the length is three times the width. So the length is three times the width. If the length is a and the width is a minus 15, here I get an equation in terms of a. If I'm going to solve this equation in terms of a, I'm going to get the value of a. And the value of a referred to the length. If a is 22.5 centimeter, पहले ये बताओ ये 22.5 सेंटीमीटर कैसा है, ये समझ आ गया? जी सही है, समझ आ गया. सही है. अब आपको क्वेश्चन ने कहा था आपको इक्वेशन राइट डाउन करनी है इन ए और उसको सॉल्व करना है टू फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ. सो लेंथ तो आ गई, लेंथ आपके पास 22.5 है, तो विड्थ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर शॉर्टर. सो 22.5 माइनस 15 कर दिया. सही है सर, समझ आ गया. समझ आ गई? ओके. अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज है क्वेश्चन नंबर 8 में, यू नीड टू रीअरेंज दीज फॉर्मूला टू मेक द लेटर इन द ब्रैकेट द सब्जेक्ट. सो अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है एंड द क्वेश्चन सेज b को सब्जेक्ट बनाना है, तो b इज गोइंग टू बी इक्वल टू a माइनस सी. सही है. यू नीड टू मेक द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट टू बी द सब्जेक्ट. अब इसमें मुझे b को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या होगा? उसको इक्वेशन के उस साइड पे लाना है. सब दैट नीड्स टू बी अ स्टैंड अलोन वेरिएबल. सो a इज इक्वल्स टू bx plus c है and you need to make x the b the subject. So सबसे A पहले you are minus going C. a minus c हो जाएगा. a minus c is going to be equal to bx and b A is going to minus C over x. upon X. या इसी तरीके से. ठीक है. तो अब पार्ट डी ट्राई कर लो. p is equals to q plus r over s और आपको r को सब्जेक्ट बनाना है. आप ये ट्राई करो. ठीक है, मैं 1 मिनट में अपना आईपैड चार्ज पे लगा के आ रहा हूँ. जी.
ऑलराइट, कर लिया आपने ये? जी सर, मैंने ट्राई किया। ट्राई किया, ओके. So you need to make R the subject. So सबसे पहले this S is going to be multiplied with P. So that is going to be PS equals to Q plus R. And then you need to जी make R the subject so that Q is going to go on the other side and it will be minus Q. हम्म, Okay. Now let's see question number 9. The formula for the total cost T of entry to the cinema for 3 adults and 3 children is given by the formula T is equals to 3 times A plus C, where A is the price of an adult ticket and C is the price of the child ticket. सही है? तो ये कॉस्ट आ जाती है. टोटल कॉस्ट T of entry to the cinema for 3 adults and 3 children. सही है ना? And does this formula make sense to you? अगर एक अडल्ट की कॉस्ट $8 है तो 3 की 3A होगी, और अगर एक चाइल्ड की कॉस्ट जी $C है तो 3 की 3C होगी. ठीक है? जी एक मिनट, आई थिंक माई स्क्रीन इज फ्रोजन. स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा ना? नहीं सर, क्वेश्चन 9 दिख रहा है ओके, बस। ठीक है. अब 3A plus 3C आ गया. ठीक है. So if you add the three adults cost and 3 childs cost, that is going to give you the total cost. और अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो it is going to be A plus C. So ये फॉर्मूला वही है. Now make C the subject of the formula. So this is the equation. I want you to solve it in such a way and make C the subject of the formula. Okay. ओके सर, 3 नीचे चले जाएगा ना पहले, Yes. और T आप अपॉन दोनों 3 अब माइनस A इज इक्वल्स टू 3। सही है. So T upon 3 equals to A plus C, and C could be T upon 3 minus A. ठीक है. एक तरीका तो ये है. Or you could have expanded this first 3A plus 3C. 3C would be T minus 3A सर and C is ऐसे भी going to. कर लिया है। सही है. तो दोनों ऑप्शंस है, आप कोई भी एक मेथड हम्म, शो करोगे हमेशा. जी सही है. ओके. जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वो आपको लिखने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर बुकलेट. सो ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा. गिवन दैट, ओह सॉरी, मैंने पार्ट बी नहीं करवाया उसका. सो पार्ट बी कह रहा है फाइंड द कॉस्ट फॉर अ चाइल्ड व्हेन द कॉस्ट फॉर एन अडल्ट इज $5 and the total cost is $24. So what is going to be the cost of a child? So what do you have to find basically? By reading the question, what do you understand? सर, हमें C ढूंढना होगा ना। सी ढूंढना पड़ेगा. तो क्या मेरे पास टी की वैल्यू और ए की वैल्यू है? टी इज द टोटल कॉस्ट, राइट? 24. And A is the cost of the adult ticket. So A is $5.
तो जिस फॉर्मूले को मैं आपने सी को सब्जेक्ट बनाया था, आप उसी फॉर्मूले को यूज कर सकती हो. ओके. Okay. So 8 minus 5 is $3. Let me know if you have any question related to this. No sir, समझ आ गया. ठीक है. अब जो मैं क्वेश्चन टाइप लिख रहा हूँ ना, आपको वो कॉपी करना है. So given that P is equal to square root 4m minus 3 over m plus 3, express m in terms of P. This statement express m in terms of P is the other way of saying कि m को subject बनाओ. ठीक है. So over here you need to express m as a subject. You need to make am the subject. So can you come up with the first step? मुझे बता सकती हो first step क्या होगा if you want to make m the subject? सर पहले हम रूट जो है वो सॉल्व करेंगे. कैसे solve करेंगे? अगर मुझे स्क्वायर रूट एलिमिनेट करना है राइट हैंड साइड से तो मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू p स्क्वायर स्क्वायर द, कर देंगे. तो दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे, so स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गॉट रिजॉल्व्ड. राइट हैंड साइड पे यू आर गोइंग टू बी Yes. लेफ्ट विद 4m minus 3 अपॉन m plus 3 और लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव p स्क्वायर. अब आपको अपनी इक्वेशन को रीअरेंज इस तरीके से करना है कि m सब्जेक्ट बन जाए. So p square m plus 3p square is going to be 4m minus 3. Okay. So अब जो m वाले टर्म्स हैं, यू आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर. p square m minus 4m is equals to minus 3p square. या मैं इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकता था. आई एम गोइंग टू टेक 3 over here and pm square on that side. So that is going to be p minus p square m. ठीक है. अब यहाँ से अगर मैं m को कॉमन लेता हूँ, सो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद 4 minus p square. ये बात सही है? जी सर. सो m को सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? 3 plus 3p square डिवाइडेड बाय 4 minus p square. चेक करो, आपका भी यही आना चाहिए. कोई ऐसा जी स्टेप सर जिसका मैं ट्राई. ये करके फिर सेकंड पार्ट ट्राई करना. सर पार्ट 1 का तो यही आंसर आ रहा है. ठीक है, ग्रेट. अब सेकंड पार्ट ट्राई करो. अच्छा, सेकंड पार्ट में थोड़ा समझाता हूँ. आपके पास p गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, ये 1 है. ठीक है. आपके पास p गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, आपके पास q गिवन है इन टर्म्स ऑफ x. आपको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि p एंड q को आप इक्वेट कर सको. तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप p वाले एक्सप्रेशन में से यू आर गोइंग टू मेक x द सब्जेक्ट, क्योंकि x इसके इसमें भी है,
तो आप x को सब्जेक्ट इसमें से भी बनाओगे, पहले समझ लो फिर ट्राई भी करना। सो ये जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है p इक्वल्स टू 2x/1 - x, my first task is to make x the subject. So I'm going to multiply this p with 1 minus x, so that is going to be 2x equal to 2x. P times 1 minus x is p minus px equals to 2x. Now I'm going to collect all the terms in x together. So 2x plus px, x वाले terms एक तरफ कर दोगे और फिर कॉमन ले लोगे। सो x कॉमन लोगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा x टाइम्स 2 प्लस p इक्वल्स टू p। सो x कम्स आउट टू बी p अपॉन 2 प्लस p। ठीक है, ये समझ में आया मैंने x को कैसे सब्जेक्ट बनाया है। जी इसी तरीके से आप q वाले एक्सप्रेशन में से x को सब्जेक्ट बनाओ। जी सर, मैं ट्राई करती हूँ। सर x इज इक्वल्स टू -1 माइनस q अपॉन q आ रहा है मेरा। ओके, चेक कर लेते हैं। सो q was equals to 1 minus x over 1 plus x, q plus qx equals to 1 minus x, qx plus x equals to 1 minus q। x कॉमन लोगी तो q plus 1 या 1 plus q एक ही बात है, ठीक है। सो x is going to be 1 minus q over q plus 1 या 1 plus q, जो भी आ रहा था। ऐसा ही आ रहा है आपके पास? जी सर, यही आ रहा है। अच्छा, अब देखो x जो है that is equals to this as well and x is equals to this as well. So definitely these two are going to be equal. P upon 2 plus p must be equal to 1 minus q over q plus 1. ये दोनों quantities equal होंगी ना, क्योंकि this also represents x and this also represents x. So we are going to equate the two expressions so that we can find a relationship between p and q. So you can cross multiply p times q plus 1 is equals to 2 plus p times 1 minus q. Okay, now I'm going to simplify this further. pq plus p equals to 2 minus 2q plus p minus pq. If I collect all the pq wale terms on one side, this this minus pq, when added with, it's going to be added with this pq, so it will be 2pq। p और p तो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 2 minus 2q। so if you take 2 common from the right hand side, you are going to get 1 minus q। और यहाँ से अब आप ये वाला 2 और ये वाले 2 को भी एलिमिनेट कर सकती हो। so pq is actually equal to 1 minus q, so p is equals to 1 minus q upon q। so p and q का ये रिलेशनशिप आ जाएगा आपके पास कि what p is basically, if I want to express p in terms of q only, that is going to be 1 minus q upon q। so that should be your final answer। now you can do the working on your own as well and confirm it। ओके सर।
सर यही आ रहा है। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है पार्ट बी में, बिल्कुल क्लियर है। जी सर समझ आ गया। ओके, नाउ यू मे ट्राई दिस पार्ट सी। Expression आपको given है and you need to make D the subject in the first part and then rearrange it and make U the subject in the second part. ठीक है, ट्राई करो। जी सर। सर पार्ट ए हो गया। ठीक है, पार्ट बी भी कर लो। जी।
चेक करो आपके ये आंसर आने चाहिए। पार्ट 1 का यही है। ठीक है, पार्ट 2 हो जाए तो मुझे बता दो। पार्ट 2 कर रही हूँ सर। ठीक है, सर पार्ट 2 में हमें सिर्फ z को नीचे लेके जाना है ना। यस, ऐसे करना। हो गया सर। देखो यही आंसर आ रहा है। जी सर यही आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूल्स। देखो, सो इफ यू हैव अ टर्म a टाइम्स b प्लस c और इसको एक्सपैंड करने का कहा जाता है, सो दिस a इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय b, सो a b, एंड देन a इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय c, सो a c प्लस a c। ठीक है, ये हमने एक्सपेंशन कर दी इसकी। अब a प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर को आप कैसे एक्सपेंड करते हो? a प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर इज सेम इज सेइंग a प्लस बी के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो विद इटसेल्फ। So if you are going to multiply a plus b with a plus b, this is what you are going to get. So a square plus ab plus ab plus b square. So a square plus 2ab plus b square. अब या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बट दिस इज अ टीडियस प्रोसेस, सो यू मस्ट रिमेंबर द रूल that says कि if you want to expand a plus b the whole thing square, that is always going to be equal to the first term का square plus 2 times the first term and the second term plus the second term का square. So for example अगर मुझे x plus 5 the whole thing square को expand करना होता, so the first term is x तो वो square हो जाएगा plus 2 times x times 5 plus 5 the whole thing square. So x square plus 2x times 5 is 10x plus 25. सही है। So आप a plus b the whole thing square can be expanded as a square plus 2ab plus b square, वो चीज यहाँ लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर a minus b the whole thing square है, so this can be expanded as a square minus 2ab plus b square। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? a जी square सर। a minus b the whole thing square will never be equal to a square minus b square। ये बात याद रखनी है आपने, अक्सर ये कॉमन मिस्टेक होती है। a minus b the whole thing square को a पे भी स्क्वायर कर दिया, b पे भी स्क्वायर कर दिया। नो, दैट्स नॉट द केस। if you want to expand it, you need to expand it using a square minus 2ab plus b square। ओके, ये बात याद रहेगी, ओके। राइट? ठीक है। सो अब अगर मुझे ये पता है कि a प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताओ किसके बराबर होगा, तो व्हाट यू कैन डू इज ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर, आप इसको इस साइड पर रहने दो, और ये जो टर्म है प्लस 2ab, ब्रिंग इट टू द अदर साइड। So that is going to be a plus b the whole thing square equals to a
ए प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर माइनस 2ab, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। समझ में आया? लेकिन ये आइडेंटिटी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी, ये दो आइडेंटिटीज अभी याद रखनी है और ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है। ए जी सर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है? अगर ये चीज़ें पता हैं तो मुझे बता दो, आई कैन मूव ऑन। अगर नहीं पता तो हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं सर, आप ये डिस्कस कर लें। कर लो, ओके। सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी, उसको मैं मल्टीप्लाई करके मैं यही वाला रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक्सपेंशन आइडेंटिटी है, यानी कि एक एक्सपेंशन रूल है कि ए प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर, ए इज द फर्स्ट टर्म, बी इज द सेकेंड टर्म। तो जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे इस स्टेप पे बताओ, ये चीज़ में कुछ समझना है? नहीं सर, ये समझ आ गया। और इसके बाद ये वाला a माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आ गया सर, वो जो आपने ऊपर करवाया था ना, वो समझ नहीं आया। जैसे कि ये ना, ठीक है, मैं आपसे पूछ हम्म। रहा हूँ कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए मुझे अलग आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, तो उसमें मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम चाहिए। तो अगर मैं इस एक्सपेंशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने दूं राइट हैंड साइड पे, और 2ab को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो वो माइनस 2ab हो जाएगा। जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हुआ? ए प्लस बी द ए होल थिंग प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। 2ab। जी, समझ आ गया। ठीक है, इसी तरह रीअरेंज किया। इसी तरीके से अब अगर मैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है a माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट वो बना तो सिर्फ सकता हूँ। तो ये माइनस हो जाएगा ना। वो वहाँ नहीं, ये नहीं, ये जो है ना माइनस 2ab वो वहाँ जाके खाली ऐड हो जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है? अच्छा। अब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूल है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है और आपको कहा जाता है कि इसको एक्सपैंड करो, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आप पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज नॉट द सिंप्लीफाइड एक्सपेंडेड फॉर्म, सो इसको एक्सपैंड कैसे करोगे? इट इज गोइंग टू बी a प्लस बी, द फर्स्ट टर्म इज x, द सेकंड टर्म इज 5, सो x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 5। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी, ठीक है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। दिस इज वन ऑफ द रूल। सही है? ओके सर। अच्छा, अब एक्सपेंशन करना क्या होता है ये आपने समझ लिया। एक्सपेंडेड एक्सपेंशन करके जो आपके पास आंसर आया है वो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी, मीनिंग दिस फॉर्म इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ x प्लस 5 द होल थिंग स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि मैं आपको ये वाली फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म दूं और मैं आपसे अब कहूंगा कि फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज फॉर्म ये होगी, ठीक है? ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो x प्लस 5 को अगर एक्सपेंड करता हूं मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 आएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करो तो फैक्टराइजेशन ये होगी x प्लस 5 द होल थिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे मैंने यही लिख के दिया है कि ए स्क्वायर, आप मेरा कर्सर शायद नहीं देख सकती, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कैसे करोगे? ए प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर में। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कैसे करोगे आप? ए माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर में।
और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कैसे करोगी? a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, तो ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये फैक्टराइज फॉर्म है उसकी। यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। ठीक है, ओके। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4p प्लस 6, अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा कि मैं सबसे ज़्यादा कॉमन क्या चीज़ ले सकता हूँ। तो मैं 4 कॉमन लूंगा तो नहीं होगा, 4 कॉमन नहीं ले 2 सकता। कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लूंगा तो p प्लस 3, ये फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, p प्लस 3 एक फैक्टर बन गया। अब इसी तरीके से इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? a कॉमन सर आ जाएगा। 2p + 3 होगा ना? हाँ सॉरी, 2p प्लस 3 होगा, सही कह रही हो आप। 2a स्क्वायर माइनस 3 में से मैं a कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, यहाँ पे -3। इसी तरीके से 8x स्क्वायर माइनस 12x में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, तो x -3। तो ये इसके फैक्टर्ड फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब हम वो एक्सप्रेशन देख रहे हैं जो है इस फॉर्म में, ax प्लस bx प्लस ky प्लस kby, यानी कि इस फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखो x टाइम्स a प्लस बी है प्लस 2y टाइम्स a प्लस बी है, तो इसमें मैं देखो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉमन ले सकता हूँ। अगर मेरे पास दोनों टर्म्स में a प्लस बी है तो मैं a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने a प्लस बी कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे आई एम लेफ्ट विथ x, ठीक है, और यहाँ पे आई एम लेफ्ट विथ 2y, सो x प्लस 2y, ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसका ट्राई करो। चारों टर्म्स के अंदर कोई कॉमन चीज नहीं है, तो आप दो दो टर्म्स करके करो। आप देखो इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, सही है, तो x कॉमन ax। लोगी तो x -3 कॉमन रह जाएगा, और फिर +2a कॉमन लोगी तो x -3 कॉमन रह जाएगा। अब आप चेक कर सकती हो कि x -3 इसमें भी कॉमन है, x -3 इसमें भी कॉमन है, तो x -3 कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2a, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई ऐसी चीज जो जी आप सर। कॉपी कॉपी करना चाहो आप कॉपी कर लो, और आज की नहीं क्लास में सर, मैं यहाँ तक। ठीक है, कॉपी कर लिया। सॉरी क्या कह रही हो? कॉपी कर लिया। कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल की क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे अ सर पॉसिबिलिटी कि मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास इस वीकेंड पर लूँ, ठीक है, ठीक है सर। बता दूंगा आपको। ओके, जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।